Hello my dear students, Assalamu alaikum. This is Afaz from Greenpeace School. Hopefully you all guys must be fine. Welcome in physics class. So guys, today which lecture we are going to start? These are the numericals of same chapter number 3. As you know that we have done numerical number 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 and 3.6. So guys, today we are going to start from 3.7. So let's continue our lecture. So dear students, this is numerical number 3.7. So what is the statement? The velocity of a motorcycle increases by an acceleration of 2 meters per second square and becomes 20 meters per second. Velocity of a motorcycle increases by an acceleration. First thing is acceleration which is given, that is 2 meters per second square. So firstly you will write the data. Acceleration आपको दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी बन जाती है वो कितनी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड. इट मींस दिस इज फाइनल वेलोसिटी. सो यू विल राइट फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 20 मीटर per second. And what is the time is given? Time is 5 seconds. So you will write 5 seconds which is given time and find the initial velocity. आपसे क्या कहा जा रहा है कि भाई initial velocity को आपने find करना है. So you have to find the initial velocity. Now you will apply that formula which will be according to this data, जिसमें A भी हो, T भी हो, VF भी हो, VI भी हो. सो स्टूडेंट्स आपने सोचना है, क्या सोचना है कि इस डेटा के मुताबिक ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है. सो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ही ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है. कैसे? वी एफ ये आ रहा है, ए भी आ रहा है इसमें, ये रहा, टी भी है, देन वी आई भी है, सारी चीज़ें इसमें मौजूद है. बट यू हैव टू फाइंड वी आई. So Vi will remain at one side, other values you can put and you can easily find the value of initial velocity. How? Firstly you will write the first equation of motion, that is Vf equals to Vi plus At. अब आपने क्योंकि Vi को find करना है तो Vi इस तरफ रहेगा. When you will shift At over there, so it will go on that side, it will become minus sign. अब At इधर प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का. सो इट विल बिकम Vi इक्वल्स टू Vf माइनस At. Vf की वैल्यू दी हुई है 20, A की वैल्यू 2 है एंड T विल बी 5. सो यू विल राइट इन द ब्रैकेट बिकॉज दीज आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर. सो 20 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड. सो Vi जो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है 10 मीटर पर सेकेंड इसकी मोटरसाइकिल की. So now guys, we are going to start 3.8. In this numerical, a bus is moving with a velocity of 72 km per hour. Now this velocity is given in km per hour. On the application of brakes, it stops after covering a distance of 500 meters. Calculate the deceleration produced by the brakes. Now first thing is that what is the data? आपको यहाँ पे क्या डेटा दिया हुआ है? सबसे पहले जो आपको चीज़ दी हुई है वो है इनिशियल वेलोसिटी. अ बस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर. सो इट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 72 किलोमीटर पर आवर. सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू चेंज किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड. हाउ यू विल चेंज? यू नो, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है. एंड फॉर ऑल यू व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड बाय 3600. फाइन. सो 2 zeros आर कैंसिल विद 2 zeros, देन 36 1 is 36, 36 2s are 72. Now 2 10s are 20 meter per second. This is the initial velocity. Now you have changed in meter per second. आपने इसको किस में चेंज कर लिया? मीटर पर सेकेंड के अंदर. Now what thing you need to do? You will write the other data. What? The next thing is the distance which is given, which is 500 meter. Understood? Now what will be the final velocity? स्टूडेंट्स आपको ज़रा गौर करना है यहाँ पे
कि यहाँ पे आपको पहली वेलोसिटी जो दी हुई थी वो थी 72 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद उसने एक स्टेटमेंट लिखी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। जहाँ पे ब्रेक्स की बात आ रही है तो इसका मतलब आगे बस कहीं ना कहीं जाके जब उसने ब्रेक्स अप्लाई की ऑब्वियसली वो स्टॉप हो गई, तो मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो, बिकॉज ही हैज़ अप्लाइड द ब्रेक्स। जैसे ही उसने ब्रेक्स अप्लाई की, जैसे ही वो रुकी गाड़ी, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वो क्या होगी, ज़ीरो। सो वी एफ विल बी ज़ीरो। अंडरस्टूड। नाउ यू हैव टू फाइंड द डिसेलरेशन। So guys, first thing you need to understand that what is the difference between acceleration and deceleration. These are the same things but sign will be opposite. अगर acceleration के साथ positive sign आ रहा है तो obviously deceleration के साथ, deceleration actually acceleration का reverse है, तो जिसका reverse होगा तो obviously इसमें क्या होगा, माइनस साइन। जैसे कि मैं एक बॉल को वॉल पे फेंकता हूँ, मेरा वो एक्शन होता है और जो मेरा एक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो मुझे वॉल जो उसका रिस्पॉन्स देगी दैट विल बी विद माइनस साइन बट वैल्यू विल बी सेम। अगर मेरी जो फोर्स है वो 10 न्यूटन की है वॉल पे, और अगर वॉल उसको रिटर्न कर रहा है वो भी उतनी ही स्पीड से मुझे वो चीज़ वापस करेगी, बट जो साइन होगी, जो उसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट। तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से उसका साइन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। So first thing you need to understand, these things are same, deceleration and acceleration, but sign will be changed. अब आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपको डिसेलरेशन फाइंड करने का कहा जाएगा, आपने क्या करना है, हमेशा याद रखना है कि आंसर के साथ, उस डिसेलरेशन के आंसर के साथ हमेशा माइनस साइन लाजमी आएगा। अगर माइनस नहीं आया तो इसमें आपकी कोई ना कोई मिस्टेक होगी। अंडरस्टूड। सो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला। Which formula you can apply? Now guys, distance is given, Vf obviously 0, fine, Vi equals to 20 meter per second. Now he is saying that calculate the deceleration. It means acceleration or deceleration are the same things, fine, you have to find A. Now according to this data you will apply the formula. Which formula you can apply? According to me, third equation of motion you can easily apply, which is 2as equals to Vf square minus Vi square. Now see the formula very carefully, that 2 is constant, A you have to find, S is also given, and Vf is also there, which is 0, you will put 0, and Vi is 20 meter per second, you will put here 20. According to this data you will just put the values and you can easily find the deceleration. But remember this thing, the last sign, the last answer will be minus sign. जो भी आंसर आएगा इसका, लेकिन उसके साथ साइन क्या होगा, माइनस का होगा। और जो एक्सेलरेशन का यूनिट है ये तो आप बचपन से जानते हैं क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। I hope you understood. I have just given the hint of this numerical, but you have to do by yourself. Now we are going to start the next numerical, which is 3.9. Now what is numerical 3.9? A car starting from the rest attains a velocity of 20 meters per second. Now guys, just give our attention of this numerical. Give your attention that a car starting from the rest. इसका मतलब क्या है, जब वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि वो स्टार्ट ही रेस्ट की पोजीशन से कर रहा है। उसके बाद जब वो वेलोसिटी अपनी अटेन करता है वो क्या होती है, 20 मीटर पर सेकेंड. व्हाट विल बी द वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकेंड. सो गाइस ऑब्वियसली इट विल बी फाइनल वेलोसिटी. नाउ व्हाट इज सेइंग, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार. फाइंड time is also given, which is 5 seconds, and find the distance. You have to find the distance. There are two ways to solve this numerical. The first way, which I am going to tell you, that is little bit lengthy, but other way is very short, but it's up to you which way you want to select. Fine. So the first way is you have to find the distance. Understood? So which formula you can apply easily? According to me, if I will apply third equation of motion. What is third equation of motion? Which is 2as equals to Vf square minus Vi
square. So guys, notice each and everything. 2 is constant, fine. A is missing over here, but S you have to find. VF is given and VI is also given. Now guys, this thing you have to find, but this thing is missing, acceleration. For this formula, firstly you have to find the acceleration. जब आपके पास acceleration आएगा तो आप क्या find करेंगे? Distance. जब दोनों चीज़ें ही unknown है, so how is this possible that you can solve this numerical? So for each and every numerical you should know the data. और डेटा के लिए ज़रूरी है कि हर चीज़ का होना लाजमी है. Just one thing should be unknown. For other thing you have to find like this. आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन सॉरी आपको नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, और बाकी चीज़ें सारी दी हुई हैं, बट साथ साथ आपको डिस्टेंस भी यहाँ पे फाइंड करना है. तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन मिस हो रहा है यहाँ पे. एक्सेलरेशन देखिए आप इस डेटा में आपको कहीं नज़र आ रहा है? कहीं भी नज़र नहीं आ रहा. सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आप एक फार्मूला जानते हैं, वो कौन सा है? A इक्वल्स टू VF माइनस VI अपॉन T. फाइन, ये आपने पढ़ा हुआ है, VF माइनस VI अपॉन T. सो VF इज आल्सो गिवन 20 माइनस 0 because VI is 0 and time is 5. When you will solve it, it will become 5 4s are 20. It will become 4 meter per second square. Now you have find A. अब आपने A find कर लिया है. Now you will apply which formula? जब आपके पास A की वैल्यू आ गई, now you can easily apply the third equation of quotient because you have find the value of A. अब आप A की जगह इधर क्या पुट कर सकते हैं? 4 because the value is 4. Fine. Now you will apply 2AS equals to VF square minus VI square because हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो चुकी है. अब इसके मुताबिक यहाँ पे आपको दिया हुआ है A की वैल्यू 4 है. S, what is S? You have to find the S. So S will remain same. VF is given 20. So square will be there minus 0 square 0. Fine. 2 4s are 8S equals to 20 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है? 20 का स्क्वायर मतलब 22 नहीं आपने करना. कभी भी 20 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना. मोस्टली स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज्ड हियर. व्हाट दे आर डूइंग कि 20 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, बट स्टूडेंट दिस इज रॉन्ग. 20 का स्क्वायर का मतलब 20 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है. इट विल बिकम 400. फाइन. नाउ यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस. बट अदर वे टू सॉल्व दिस, अगर आपको इस बड़े मेथड से बचना है, ये थोड़ा सा लेंथी है बट है इजी, बहुत इजी है, बट फिर भी अगर आप इस लेंथी मेथड से बचना चाहते हैं तो आप इसको कर दें कैंसिल. डायरेक्ट वन फार्मूला यू कैन अप्लाई, दिस इज ऑफ डिस्टेंस. एक डिस्टेंस का फार्मूला आता है, वो होता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम. डिस्टेंस इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम. सो डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड, सो इट विल रिमेन सेम. बट एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ का एवरेज पता है कैसे निकलता है? अगर वो दो चीज़ों का एवरेज है तो उसको आप प्लस करके 2 से डिवाइड कराएंगे, 2 से. अगर आप 3 चीज़ों का एवरेज निकाल रहे हैं तो उसको आप 3 से डिवाइड करेंगे, लेकिन करना प्लस ही है हमेशा. अब यहाँ पे कितनी वेलोसिटीज़ हैं? 2, VF एंड VI. सो व्हाट यू विल डू? VF प्लस VI अपॉन कितनी वेलोसिटीज़ हैं? 2. सो यू विल डिवाइड बाय 2. ये मैंने किसकी जगह पुट किया? ये मैंने इस एवरेज वेलोसिटी की जगह पुट किया. फाइन. ये पूरी चीज़ किसकी जगह आ गई? एवरेज वेलोसिटी. किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है? अगर उसमें अब देखें एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे हमारे पास 2 वेलोसिटीज़ थी तो मैंने यहाँ पे 2 वेलोसिटीज़ लिख के उसको 2 से ही डिवाइड कराया. लेट सपोज अगर यहाँ पे 3 वेलोसिटीज़ होती तो मैं यहाँ पे किससे डिवाइड कराता? उसको 3 से. बट देयर आर 2 वेलोसिटीज़, just you will write the 2 velocities and divide it by 2, but the time will remain same. Understood? Now you will just put the values. VF equals to 20 plus 0 upon 2 and multiply by what is the time? 5. 20 plus 0 20 obviously. 20 divided by 2 10.
2 10 20. Fine. And 10 multiplied by 5. S equals to 10 5 the 50 meter. So guys, 50 meter is the answer. In this case, we can also find the answer. यहाँ पे देखें 8, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है 8s equals to 400. s के साथ 8 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई. Here it will be divide. How? S equals to 400 upon 8. So it will become 50 meter. So guys, notice one thing. Both answers are same. In this case, answer is coming 50 meter, and in this, by this formula as well, answer is coming 50 meter. But this is the short method, and this is little bit lengthy but very easy. Fine. And obviously you will select this method. I know, because mostly students are going to very easy way. Fine. So this is very easy way to solve this numerical, but for your knowledge, you must understand that you can solve by this method as well. So guys, this was numerical 3.9. Now we are going to start 3.10. Now the 10th numerical is a stone is dropped from the top of the tower. एक पत्थर को गिराया जाता है टावर की बिल्डिंग से, ठीक है, और वो कितना सेकंड लगाता है? 5 seconds टू रीच द ग्राउंड. फाइन. वो टावर से कितना टाइम लगाता है? 5 seconds का ग्राउंड तक पहुंचने में. कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर. सो गाइस, दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर न्यूमेरिकल्स. So you need to understand what is the given in the data. First thing is a stone is dropped from the tower. जब पत्थर को ऊपर से गिराया जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली जब अभी वो पहले गिराया नहीं जाता तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है. फाइन. एट द टॉप ऑफ द टावर द इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0. फाइन. आफ्टर 5 seconds जब ये हिट करता है ग्राउंड पे तो उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना हो जाता है? 10 मीटर पर सेकेंड. नाउ दिस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दिस. गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप ऊपर से कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो उसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है. फाइन. उसमें क्या इन्वॉल्व होती है? ग्रेविटी. क्योंकि अर्थ में जो होती है ग्रेविटी होती है. जब आप कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो उसमें ग्रेविटी होगी, और ग्रेविटी की एक वैल्यू होती है विच विल बी फिक्स वैल्यू, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्चुअली जो जी की वैल्यू होती है वो होती है जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट मोस्टली वी आर टेकिंग 10 बिकॉज व्हेन वी विल राउंड ऑफ दिस वैल्यू 9.8 को जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो वो क्या बन जाता है? 10. तो हम तकरीबन ज़्यादातर कौन सी वैल्यू लेते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट इट्स फिक्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अंडरस्टूड? सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफ दिस इज नॉट गिवन सो यू विल राइट बाय योरसेल्फ बिकॉज इट्स वैल्यू इज फिक्स. इसकी वैल्यू फिक्स होती है, और ऊपर से कोई भी चीज़ अगर नीचे गिरेगी तो उसमें हमेशा ग्रेविटी इन्वॉल्व होगी. अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाइट ऑफ टावर. हाइट ऑफ टावर ऑब्वियसली जो ऊपर से चीज़ नीचे आ रही है उसमें क्या इन्वॉल्व होगा? डिस्टेंस होगा. तो ये डिस्टेंस ना, बट होगी जब ऊपर से नीचे है तो इसका मतलब वो क्या होगी? हाइट होगी. तो डिस्टेंस को हम किस में ले रहे हैं? हाइट के अंदर. वी विल टेक डिस्टेंस एज हाइट. नाउ यू नीड टू फाइंड द हाइट. सो गाइज, विच इक्वेशन यू कैन अप्लाई इजीली? ऑब्वियसली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू दिस डेटा. According to this data, you can apply second equation of motion. What is second equation of motion? S equals to VIT plus half AT square. Now, आपको पता है कि आपने डिस्टेंस को किस में लिया? हाइट के अंदर, बिकॉज S equals to H. So you will replace S by H. आपने S को रिप्लेस कर देना है किससे? H से. Understood? Now, VI will remain same, T will remain same. This is the fixed value. Now A, because आप वो चीज़ ऊपर से फेंकी तो वो एक्सेलरेशन में ही काउंट होगी, बट वो जो एक्सेलरेशन होगा वो किसकी वजह से होगा? वो ग्रेविटी की वजह से होगा. सो यू विल पुट G ओवर हेयर इंस्टेड ऑफ एक्सेलरेशन. हम इसको रिप्लेस करके क्या लिख देते हैं? G. अंडरस्टूड? एंड T स्क्वायर विल रिमेन same. Now you will just put the values. You have to find H.
so h will remain same. Vi will be 0 because Vi is given 0 over here. And t, what is the value of t? 5 plus half, this is the fixed value. G, obviously it is the fixed value. What is the value of g? 10 meter per second square, you know very well. And t square means 5 square because the value of t is 5. आपको वैल्यू क्या दी हुई है? 5. Now you will just solve and the answer will be 125 meters. So it means the height will be 125 meters. Now we are going to start 3.11. So guys, this is 3.11 numerical. A boy throws a ball with a velocity of 20 meter per second. एक लड़का है जो बॉल को फेंकता है, वो कितनी स्पीड के साथ? 20 मीटर पर सेकेंड की. सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड. बट व्हेन इट विल टच द ग्राउंड द फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0. जैसे ही वो टच करेगा ग्राउंड को, अर्थ को, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी. एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट वाई माइनस साइन इज हेयर? यहाँ पे माइनस साइन क्यों इन्वॉल्व हुआ है? इसकी रीज़न ये है कि आप किसी भी चीज़ को अगर ग्रेविटी के अपोजिट फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है वो किस में चली जाएगी? माइनस साइन के साथ. बट द वैल्यू विल रिमेन सेम. क्योंकि देखिए, एक चीज़ अगर ऊपर से नीचे आ रही है वो ग्रेविटी को क्या कर रही है? फेवर दे रही है. ग्रेविटी को कोई भी चीज़ फेवर देगी तो मतलब वो चीज़ ऊपर से नीचे आएगी. ठीक है, तो जैसे ही वो चीज़ नीचे आएगी तो वो जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में होगी. अब अगर मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं उस चीज़ को कहाँ फेंकूँगा? ऊपर की तरफ. तो मतलब ग्रेविटी में कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस का साइन. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई माइनस साइन इज ओवर हियर. अंडरस्टूड? नाउ यू हैव टू फाइंड द टाइम. विच टाइम? थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल. पहले तो आपको थ्रोइंग का भी मालूम करना और कैचिंग का भी. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास, मेरे डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक डायरेक्शन का टाइम आ जाए तो आप इजीली जो है दूसरे डायरेक्शन का टाइम जो है इजीली फाइंड कर सकते हैं. हाउ? अगर आप थ्रोइंग का टाइम मालूम कर लें तो कैचिंग वाला टाइम जो है इजीली आपके पास आ सकता है. सो नाउ यू विल अप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू दिस डेटा. What is the first equation of motion? Vf equals to Vi plus At. Vf equals to Vi plus, obviously you know A is given in the form of G, gravity. So you will replace A by G. T will remain same. You have to find the T. So obviously आपको T मालूम करना है तो T को इधर ही रहने दे, बाकी चीज़ें उधर ले जाते हैं. Vi इधर प्लस का है, कोई साइन नहीं है, प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा. देखिए माइनस का हो गया. एंड G इज मल्टीप्लाइंग बाय T. उधर जाके ये किस क्या हो जाएगा? डिवाइड. क्योंकि G इधर T से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई. इधर आके क्या हो जाएगा? इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा. सो T क्या हो जाएगा? Vf माइनस Vi अपॉन G. नाउ यू विल जस्ट पुट द वैल्यू 0 माइनस 20 अपॉन माइनस 10. फाइन. सो माइनस विल कैंसिल विद माइनस एंड 10 1 is 10, 10 2 is 20. सो T विल बी 2 सेकेंड. सो ऑब्वियसली गाइज टोटल टाइम क्या होगा बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल? एक चीज़ मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो वो 2 सेकेंड की तरफ है, तो ऑब्वियसली वो नीचे भी कितनी सेकेंड्स के अंदर आएगी? 2. तो इसका मतलब 2 + 2 कितने हो जाएंगे? 4 सेकेंड्स. द टोटल टाइम विल बी 4 सेकेंड्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल नंबर 3.12. Now numerical number 3.12 we are going to start, which is a stone is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second. एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है. अपवर्ड कहा जा रहा है. जब ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ आपने ये नोटिस करनी है कि उसको कौन सी डायरेक्शन में डाला जा रहा है. और जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 20 मीटर पर सेकेंड. सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 20 मीटर पर सेकेंड. जब ऊपर की तरफ उस स्टोन को जब ऊपर की तरफ फेंका तो जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाएगा तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जिसमें वो स्टोन जो है थोड़ा सा रुक जाएगा और फिर उसके बाद वो नीचे की तरफ आएगा. अंडरस्टूड? सो जहाँ पे वो रुकेगा ऊपर की तरफ
So it means that will be the final velocity, and final velocity when the stone will be stopped and in the upward direction, so final velocity will be 0. Final velocity क्या हो जाएगी 0, और acceleration due to gravity same will be minus sign because the direction is upward. Guys, remember this thing. This is against the gravity. This is against the gravity. हम उस चीज़ को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं. A stone is thrown vertically upward. तो ऑब्वियसली ये अर्थ के अगेंस्ट जब हम इस चीज़ को फेंकेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आप लोग खुद से लगा देंगे. एंड द हाइट यू हैव टू फाइंड, बिकॉज फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन. अब आपको क्या फाइंड करनी है, नीचे से ऊपर की तरफ हाइट जिसमें आपने उस स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका. एंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसका टाइम भी फाइंड करना है कि कितनी देर के अंदर इस हाइट को कवर किया. नाउ विच फॉर्मूला यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंग टू दिस डेटा. विच फॉर्मूला, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू दिस डेटा यू विल अप्लाई द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. Which apply? Which equation? Third equation of motion. What is the third equation of motion? 2as equals to vf square minus vi square. Now a will replace with g, s equals to vf square minus vi square. Now you will just put the values. Vf is given 0, so you will put here 0. Fine. 0 square minus vi square means 20 square. Fine. 2 will remain same. What is the value of g? Minus 10. And s mean height. S mean height. Height you have to find. Height will remain same. Now you will solve and you will find the height from here. आपने यहाँ से क्या कर लेना है, height find कर लेनी है. जब हाइट आ जाएगी देन विच फॉर्मूला यू विल अप्लाई फॉर टाइम. फॉर टाइम यू विल अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज vf equals to vi plus at. It means it will become vf is 0, vi is 20, a means g. What is the value of g? Minus 10, and t you have to find, and you can find the t from this formula. Now you can easily solve this numerical. I have given you the hint. Just you have to put the values and you have to find the answer. This is your task and you have to do from your home. 3.12. Now the last numerical is 3.13, which we are going to start. So in this numerical, a stone is dropped from the height of 40 meter. अब जो स्टोन को गिराया जा रहा है वो हाइट से गिराया जा रहा है. कितनी हाइट से? 40 मीटर. So it means height is given, which is 40 meter. How much time it will take to reach the ground? Same, we have to find the time. And with what velocity will it strike the ground? We have to find the final velocity as well. And final velocity, when it will, final velocity mean when it will touch the ground. कि भाई जब ये टच करेगा ग्राउंड को तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी. अंडरस्टूड. एंड वी आई विल बी ऑब्वियसली 0. हाउ? बिकॉज स्टोन को ड्रॉप करने से पहले वो रेस्ट में था, तो इसका मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी? 0. नाउ यू हैव टू फाइंड द टाइम एंड फाइनल वेलोसिटी. So for final velocity you will apply the third equation of motion, which is 2as equals to vf square minus vi square. So just we will replace the values. A will replace with g, s with h, and these things will remain same. Now you will just put the values. It will become 2, 10, and h will replace by 40 because h is 40. Now vf square equals to 2 multiplied by 10, 20, 40s are 800. Now the square is given. You have to cancel the square. Square को cancel करने के लिए
आप जानते हैं बचपन से कि भाई स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। अगर स्क्वायर हो उसको ख़त्म करने के लिए क्या लेना पड़ता है, स्क्वायर रूट, और अगर स्क्वायर रूट को कैंसिल करना है तो फिर स्क्वायर लेना पड़ता है। अंडरस्टूड? नाउ वी हैव टू कैंसिल द स्क्वायर। हाउ वी विल कैंसिल द स्क्वायर? वी विल टेक द रूट ऑन बोथ साइड्स, so it means square will cancel with square root. Now here just will remain VF, और जब हम 800 का स्क्वायर रूट लेते हैं with the help of calculator, so it will be 28.2 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड? अब हमारे पास VF भी आ गया। Now for time which equation of motion we can apply, which is first equation of motion, VF equals to VI plus AT। नाउ VF की वैल्यू दी हुई है, इसमें तो नहीं दी हुई बट अभी अभी हमने फाइंड की है, विच इज़ 28.2 मीटर पर सेकेंड। इसकी जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, 28.2। बट फर्स्टली यू नीड टू अरेंज द डेटा अकॉर्डिंग टू द टाइम। आपको टाइम मालूम करना है तो बाकी चीज़ें इस तरफ नहीं होंगी, बाकी चीज़ें उस तरफ ले जाएं आप। यहाँ पे जो VI है प्लस का यहाँ माइनस का हो जाएगा, G इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। नाउ यू हैव अरेंज द वैल्यूज़। Now for find the time, what you need to do, t equals to, just you will put the values VF. What is the value of VF? You have 28.2 and minus VI is 0 and G will 10. Now this is positive 10. What? This is positive 10. Remember this thing because a stone is dropped from the height. अब उसको नीचे की तरफ लाया जा रहा है, आपको ग्रेविटी के फेवर में आ रही है वो चीज़, तो उसका मतलब जो उसका साइन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अंडरस्टूड? नॉट नेगेटिव। अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो नेगेटिव, नाउ इट इज कमिंग डाउन सो इट विल बी प्लस, सो यू विल पुट हियर प्लस साइन। नाउ यू विल सॉल्व एंड यू कैन इजीली फाइंड द टाइम। अंडरस्टूड? सो गाइस, दीज वर द न्यूमेरिकल्स you need to practice in your home. So guys, these were the numericals which I have explained today from 3.7 till 3.13. So today we have completed the numericals of chapter number 3. I hope you understood. I have given all the explanations. No point is missing. I hope if you are getting any problem you can ask. But I think there should be no problem because I explained each and everything in these numericals. But with every numerical you should know the data. Firstly you need to understand the data, and the next thing is you should apply the formula according to the data. If you know the data, अगर आपको data पता है तो आप easily उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंग उस फार्मूला को अप्लाई करना आना चाहिए आपको। If these two things you can do easily, then the numerical is very easy for you. Understood? So this was our basic chapter. ये हमारा एक basic chapter था जिसके numericals बहुत easy थे, which I have explained today. And today we have completed the numericals. I hope you understood. And in case of any problem, anytime you can ask. Now inshallah we'll meet in the next video. Till then, stay safe, but remember one thing, keep practice. Students, keep practice always, because without practice you can't achieve your success. So for these numericals you need to do the practice, because practice makes a man perfect. At least 2 times you need to do the practice, not much more, just 2 times. This is my humble request to you all. So inshallah we'll meet in the next video. Till then, stay safe. Allah Hafiz.